starting ना, my mom was cooking something and I खाना मुझे बहुत पसंद है and अभी मैंने just like before starting I ate some and भगवान जाने कैसे I had a chili तो इसलिए मुझे 2-4 मिनट और लेट हो गया. Voice is breaking. All right, all right, all right. जी जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो ऑफ करके कर लीजिए तो नेटवर्क इशू होगा. ठीक है. अभी am I audible? Am I audible now? अब ठीक है. हाँ जी. Better? All right, ठीक है. ठीक है. How many questions you can expect from contract? See, एक मिनट रुको. Question लेंगे. देखो, do not text unnecessarily. ठीक है? एक जना आंसर दे दो. If I ask yes, no, one person if somebody has started to well and good. ऐसे excess question मत डालिएगा because it is very difficult for me to take the out in the end. ठीक है? Undue influence आज करूंगी मैं, फिर से बताऊंगी पूरा. Undue influence बताऊंगी. देखो, verbal agreement is enforceable. देखो, there is this myth now that a contract needs to be in writing. No, the Contract Act doesn't say so. A contract can be oral, but there are some contracts that needs to be in writing. For example, if there is a contract of immovable property, for example, मान लीजिए अगर आप अपनी जमीन का खरीद बेच कर रहे हैं, it needs to be registered, it needs to be in writing. करेंगे यार, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कल मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, तो आई एम नॉट आस्किंग. ठीक है, I'm not giving the answer of this question because I will be dealing it. How many questions we can expect from contract? We can expect. See, the question paper is very dynamic every year. Every year the question paper is very dynamic, but still you can expect 5, 6, 7, 8 questions from contract. I guess you may get, you may not get. Because question paper वो तो जो मन होता है वो set कर देते हैं. Sometimes they ask all the questions from quality, and sometimes there is no question from quality. There is no question from law. Like the year I gave entrance in 2018. So that year the paper was full of current affairs and GK and all that stuff. Question from law was very less. Maths यार एकदम chill आता है उसमें तो छोड़ दो. I made all the questions to fill in. ठीक है, चलो मैं क्लास शुरू कर रही हूँ. बताऊंगी आगे. मैम थोड़ा ऐसा ठीक है, मैं हिंदी बोलने की कोशिश पूरी पूरी पर्याप्त कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी बोलूं. ठीक है ना. कल हमने कहाँ तक किया था. कल हम एसेंशियल्स कर रहे थे. मैं आज फिर से कल वो यस्टरडे वाज कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास था. ठीक है, तो फिर देखो मैं स्लो नहीं बोल. अच्छा ठीक है, ट्राई फाइन. और बताओ क्या कर सकती हूँ मैं. आई डू दैट whatever you guys do. Yesterday was the introductory class. कल एक introductory class था. आज मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी. ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट कुछ सेक्शंस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू गाइस. आई हैव टॉट की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, हु इज द प्रॉमिसर, हु इज द प्रॉमिसी. ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डेल्ट. द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ ऑलरेडी डेल्ट. डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डेल्ट. ठीक है. नाउ कम टू ऑफर. ऑफर क्या होता है? ऑफर क्या होता है? I don't have a slide as such, तो मैं I won't be able to tell you. Now, offer होता है कि proposal is offered when one person signifies to another his willingness to do something or to abstain from doing anything. That person is said to make an offer. ठीक है, ये पर बताया था कल मैंने. Right. Now we will be doing types of offer. तो टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑफर में पहला लिखिए एक्सप्रेस ऑफर एंड सेकंड इज इम्प्लाइड ऑफर.
First is express offer. ये आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Alright, I'm checking. Wait. ये आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट ऋषभ. Am I audible now properly? हाँ हाँ जी, you are audible. Okay. And is the screen visible? ये ऋषभ? जी, ठीक हाँ है, हाँ उसको- ठीक है. Now, एक मिनट. See, I don't have a PDF as such. मेरे पास कुछ as such slides नहीं है. I'll be writing here. अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना. I do not have a PDF. I won't be able to share any PDF. PDFs, Mayuresh and Rishabh will be sharing later. ठीक है? एक मिनट. So what we are doing? We're doing offer. Type offer मैंने कल क्लास में बता दिया था. ऑफर मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया था कल होता क्या है. टुडे वी विल बी डूइंग टाइप्स ऑफ ऑफर. तो पहला टाइप है एक्सप्रेस ऑफर. टाइप्स ऑफ ऑफर. पहला है एक्सप्रेस ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर एंड सेकंड इज इम्प्लाइड ऑफर. स्क्रीन विजिबल है सभी को? ऋषभ, हम टाइपिंग, इज इट विजिबल? जो आप टाइप कर रहे हो वो विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल है बस. Okay, wait. Is this visible? It's visible. Okay, so I'm trying to write it down. It will be a bit difficult for me, but I'll try to write it down. ठीक है? वो टाइप जो हो रहा है, it is not visible. कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ऑफर बता दिया था कि ऑफर क्या होता है. ठीक है? आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर. टाइप्स ऑफ ऑफर में जो पहला है, इट इज आपका इम्प्लाइड ऑफर. इट्स IMPL, implied offer and express offer. ठीक, एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर. तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर आर दोज ऑफर विच आर मेड थ्रू वर्ड्स, ईदर ओरल और रिटन. ठीक है? अगर मान लीजिए कि मैं अभी ऋषभ से कहती हूँ कि ऋषभ, विल यू बाय माई पेन फॉर 10 रुपीज. अगर मैं ऋषभ से कहती हूँ कि विल यू बाय माई पेन फॉर 10 रुपीज, तो ये क्या है? दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर. क्यों? क्योंकि मैं सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मैं ऋषभ को एक मैसेज लिखूं, आई राइट अ लेटर टू ऋषभ कि ऋषभ, विल यू बाय माय हाउस फॉर 5 लाख रुपीज. तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा आपका एक्सप्रेस ऑफर. तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? ऑफर मेड थ्रू वर्ड्स, ईदर ओरल और रिटन. तो इट इज आपका एक्सप्रेस ऑफर. क्लियर है ना? इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफर आर ऑफर मेड थ्रू कॉन्डक्ट और थ्रू जेस्चर्स. ठीक है?
तो इट इज इम्प्लाइड ऑफर कि अगर मान लीजिए कि मैं आई गो टू अ चाय, सुदामा बैठते हैं ना, इफ आई गो टू हिम एंड थ्रू माई एक्शन आई ऑर्डर अ कप ऑफ कॉफी और आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी, तो ये क्या होगा, इट विल बी अ इम्प्लाइड ऑफर दैट थ्रू माई जेस्चर, थ्रू माई एक्शन, वो मैंने क्या किया, आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग, दैट आई हैव ऑफर्ड समथिंग, ठीक है, तो दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर्स आर दोज ऑफर विच आर मेड थ्रू वर्ड्स ईदर ओरल और रिटन, इम्प्लाइड ऑफर्स आर दोज ऑफर्स विच आर मेड थ्रू कॉन्डक्ट, ठीक है, क्लियर? नाउ एक मिनट, लेट मी लर्न दिस फर्स्ट। Now, next is specific offer. Next is specific offer. Specific offer. Specific offer. And general offer. And देखो, I am not going to answer anything which I haven't taught yet. Have patience. I am taking that in class. Have patience. ठीक है? General offer. Specific offer is offer is made to a specific person. ठीक है, अगर मैं अभी ऋषभ को बोलूं कि ऋषभ will you buy my car for 10 lakh rupees, तो only this offer is only specifically for whom, it is for Rishabh, only Rishabh can accept it, no other person can accept it, ठीक है, but in general offer it is made to the public at large, ठीक है, ऑफर में क्या होता है, जनरल ऑफर में इट इज मेड पब्लिक एट लार्ज, जिसमें कि अगर मान लो मैं अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूं कि whosoever is willing to buy my car contact me, तो anyone of you, anyone among you can accept this offer. This is what is general offer. Specific offer में it can be accepted only by the person to whom the offer is made. तो स्पेसिफिक ऑफर में अगर ऋषभ को दिया गया है तो ओनली कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है, लेकिन जनरल ऑफर में होता है, जनरल ऑफर में anyone can offer, anyone, it can be accepted by any person who comes forward and fulfill the condition, ठीक है। जनरल ऑफर का एक लीडिंग केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि एक आपकी, एक मिनट रुकेगा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी होती है, ठीक है, वो एक इश्तेहार देती है पेपर पर कि whosoever takes our drug, like whosoever have the smoke ball 3 times daily for 2 weeks, they will not contract influenza. If in case somebody contracts influenza, तो उसको वो कंपनी $100 देगी, ठीक है, एंड इसके लिए द कंपनी एड्स इन दैट एडवर्टाइजमेंट कि हमने इस काम के लिए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, मान लो 10 लाख रुपए हमने बैंक को जमा भी कर दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मिसेस कार्लिल वो ऑन द फेथ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शी बाइज दैट मेडिसिन एंड she takes that medicines according to the direction, जो डायरेक्शन दिया रहता है एडवर्टाइजमेंट में, वो लेडी वो उसको उसी डायरेक्शन के तहत वो खाती है, लेकिन फिर भी उसको हो जाता है क्या, उसको हो जाता है इन्फ्लुएंजा। Now that lady, Mrs. Carlyle, she sues the company and she claims the award. इस केस में कोर्ट ने, इस केस में जो कंपनी रहती है वो बोलती है कि दिस वाज नॉट अ सीरियस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस वाज नॉट अ सीरियस कॉन्ट्रैक्ट एंड वी नेवर गेव द ऑफर टू मिसेस कार्लिल, एंड अगर ऑफर ही नहीं है तो व्हाट शी कैन एक्सेप्ट, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कंपनी क्लेम्स। लेकिन कोर्ट इसमें कहती है कि नहीं, आपने जब ये इश्तेहार दिया, आपने जब ये एडवर्टाइजमेंट दिया कि whosoever takes medicine
of like whosoever take these smoke balls, उनको कभी नहीं होगा. And आपका इसमें seriousness आपका इस चीज से शो होता है कि आप कहते हैं कि हमने कुछ certain sum of amount बैंक में जमा भी कर दिया है कि अगर कोई क्लेम करेगा तो you will give that amount through that deposit. ठीक है. तो इस केस में कोर्ट कहती है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट था इट वाज अ जनरल ऑफर एंड मिसेस कार्लिल ने आपके जनरल ऑफर को एक्सेप्ट किया एंड शी लाइक उन्होंने उसको लाइक शी लाइक वो उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट के फेथ पर आपने जो डायरेक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग शी टेक्स दैट मेडिसिन एंड स्टिल शी contracts influenza. तो now you are liable to pay her the compensation. ठीक है, क्लियर है? ये कार्लिल वर्सेस कार्लिल स्मोकबॉल कंपनी केस, बस इतना. कार्लिल स्मोकबॉल कंपनी केस. ठीक है, इज इट क्लियर? All right. Now, next is positive and नेगेटिव ऑफर. देखो मैं एक चीज आप लोगों को बोल रही हूँ, डू नॉट टेक्स्ट अननेसेसरली. अगर कोई डाउट है उसको रख दो, लास्ट में वी विल बी डीलिंग. इफ यू आर टेक्सटिंग अननेसेसरली तो ट्रस्ट मी वी विल बी लूजिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव ऑफर. पॉजिटिव ऑफर positive offer and negative offer. Positive offer and negative offer. Positive offer क्या होता है? Positive offer वो offer होता है जिसमें कि the offer is to do something. क्या होता है? It means an offer to do something. Positive offer is an offer which means to do something. ठीक है? जैसे कि मान लो कि मैं ऋषभ से कहती हूँ, ऋषभ will you buy my pen for 10 rupees? ठीक है. तो what I am doing? I'm asking ऋषभ to buy my pen. I'm asking him to do something. ठीक है. Similarly कि मान लीजिए नेगेटिव ऑफर क्या होता है? नेगेटिव ऑफर इज अ ऑफर टू abstain from doing anything. लिखो इट. नेगेटिव ऑफर इज एन ऑफर टू abstain from doing something. ठीक है. कि मान लीजिए कि I ask Rishabh quit smoking and in return I'll give you 100 rupees. Okay, तो ये क्या हुआ? This is a negative offer. Why Rishabh to quit smoking? I'm asking Rishabh to stop doing anything. I'm abstaining Rishabh from doing something. Similarly, मान लीजिए that I teach in a coaching center. When I teach in a coaching center, if the director of the coaching center comes to me and he or she says, Shweta ma'am, do not teach at any other coaching center. And if you do not teach at any other coaching center, I will pay you extra. So, ये क्या है? This is a negative offer. What the coaching center is doing? They are abstaining me from going to teach at any other coaching center. ठीक है? So this is what is negative offer. Is it clear? Is it clear? ठीक है. Next is आपका क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर. ठीक है. क्रॉस ऑफर क्या होता है पहले बताती हूँ. ये लिख लो. दिस इज क्रॉस ऑफर. आई एम टेलिंग. क्रॉस ऑफर होता है कि मान लो कि ए है. ठीक है. ए है. ए बी को बोलता है विल यू बाय माई कार. ठीक है. मैं विल यू बाय माई कार फॉर 100 rupees. 100 rupees. ठीक है. क्रॉस ऑफर नहीं यार, बोली लगाना नहीं होता है, इंतजार करिए. फॉर 100 rupees. ठीक है.
बी भी उसी वक्त ए को बोलता है कि will you sell your car for 100 rupees? ठीक है, तो ये क्या है, इसमें दो ऑफर्स ही है कि ए बी को बोल रहा है कि विल यू बाय माई कार फॉर 100 रुपीज, एंड बी ए को क्या बोल रहा है, विल यू सेल योर कार फॉर 100 रुपीज। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या एक्सेप्टेंस है, ऑल दो बोथ द पार्टीज दे आर टॉकिंग अबाउट, although both the parties they are talking about same thing, they are talking about like selling of the car and buying of the car, same car for 100 rupees, same car for 100 rupees they are talking, like buying and selling. But क्या यहाँ पे acceptance है, नहीं है। यहाँ पे ए भी बी को क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है, राइट, और बी भी ए को क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है, राइट। There is no acceptance, right? तो इसमें लिखिए कि when two parties make identical offers, when two parties make identical offer to each other in ignorance of each other's offer, in ignorance of each other offer, they set to make cross offer, ठीक, second लिखो, when two parties make identical offer to each other in ignorance of each other's offer, they set to make a cross offer, ठीक है। Second, they doesn't fall into contract because while there are two offers, there are no acceptance. They doesn't fall into contract because while there are two offers, there is no acceptance. Third is for cross offer, it is essential that the two offers must be exactly same, इसी एग्जाम्पल में अगर मान लो कि यहाँ पे ए बोलता 1000 और बी बोल देता 1 लाख, तब यहाँ पे क्रॉस ऑफर नहीं होता। क्रॉस ऑफर तभी होगा जब वहां पे एग्जैक्ट सेम अमाउंट हो, सेम ऑफर हो, ठीक है। एक मिनट, आई एम चेकिंग आउट दी स्लाइड्स नाउ। ठीक है, क्लियर है, दिस इज क्लियर, is it clear, cross offer is clear to all of you? Next is offer versus invitation to offer. Offer versus invitation. This is INVITATION. Invitation to offer. ठीक है भैया, तुम लोग काउंटर ऑफर वेट करिए, अक्षय वेट करिए, आई विल बी कमिंग टू इट, वेट, ओके। नाउ पहले लिखो, an offer is different from invitation to offer, an offer is different from invitation to offer. In case of invitation, the party does not make an offer. In case of invitation, the parties does not make an offer. Rather, he proposes
he proposes on certain terms on which, rather, he proposes certain terms on which he is willing to negotiate. Certain terms on which he is willing to negotiate. Full stop. Now he invites other party to make an offer on those terms. Now he invites other party to make an offer on those terms. देखो ऑफर तो पता है क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है कि जिसमें कि दैट इज नॉट एन ऑफर, बट जो पार्टी रहती है दे प्रपोज ए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें दे आर विलिंग टू नेगोशिएट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब आप जाते हैं, कहाँ आप जाते हैं, मॉल में, तो मॉल में जो चीजें आपकी रखी रहती हैं ना शेल्फ पर, उसमें दैट इज इनविटेशन टू ऑफर. आप लोग जाते होंगे शॉप्स पर, शॉप्स तो मैनिक्वीन्स में देयर आर ड्रेसेस, राइट, देयर आर मल्टीपल स्टफ्स केप्ट, तो वो सब क्या होता है, दोज आर इनविटेशन टू ऑफर. जब आप मान लीजिए व्हेन यू गो टू रिलायंस स्मार्ट एंड 24/7 जब जाते हैं आप, तब आप मान लो यू पिकअप अ सोप, तो जब आप वो जो रखा हुआ सोप है दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है, जब आप उस सोप को उठा करके आप जब काउंटर पे जाते हैं तब आप ऑफर देते हैं शॉपकीपर को दैट यू आर विलिंग टू बाय. ठीक है, now the shop owner, they have got all right that they can either accept it or they can reject it. तो इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है कि the parties to the contract, the party, they proposes certain terms and condition on which he is willing to negotiate, and he invites the other party to make an offer on those terms. ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर. बेस्ट एग्जांपल इसका लिख लीजिए, जो होता है मॉल्स में जो शेल्फ वगैरह पे जो सामान रखी रहती है. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज ऑफर वर्सेस इंक्वायरी. अभी जो किसी ने कहा था ऑफर देखो विक्रांत, एक चीज मैं बताती हूँ, पढ़ो, इट्स वेरी गुड दैट यू नो द केस लॉज, बट जब भी एग्जाम वही इंसान पास करता है जो बहुत स्मार्टली पढ़ता है. ठीक है, case laws which are important that we are already telling you. It is good that if you are doing case laws, fine, I am not stopping you, but you need not to do everything. ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी करो. वही इंसान का कंपटीशन निकलता है जो बहुत सिलेक्टिव स्टडी करता है. इफ यू प्लान और इफ यू ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग ना, तो फिर नहीं हो पाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इट इज गुड दैट यू आर स्टडिंग, गुड, चलो अच्छी बात है. नाउ नेक्स्ट इज ऑफर वर्सेस इंक्वायरी. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग लिख लो, ऑफर वर्सेस इंक्वायरी. कोई अभी बोल रहे थे इंक्वायरी, पूछताछ करना, आई रेड इट. ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ अभी. ठीक है, मान लो ए है, ये जो केस है ना, दिस इज अ फेमस केस लॉ. मान लो ए बोलता है बी को, आप लोग भी ऐसे ना नोट्स बनाते जाएं, इट विल बी हेल्पफुल. कोट दी लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल. बम्पर हॉल जो रहता है वो एक स्टेट रहता है, एक लैंड रहता है. ठीक है, ठीक, वो बोलता है बी को, बी रिप्लाई करता है. ठीक है, मैं भी डिलीट करूंगी तो ये आप लोग लिख लीजिएगा. बी बोलता है $100.
बी बोलता है $100, ठीक है। नाउ ए बोलता है उसको ओके आई बाय इट, ओके आई बाय इट, ठीक है, ओके आई बाय इट, आई विल बाय इट, लिख लो भैया, ये लिखा नहीं रहा, आई बाय इट। फिर बी बोलता है बट आई एम नॉट विलिंग टू सेल, बी फिर बोलता है, यहाँ पे लिखती हूँ, बी बोलता है क्या, लिख लो खुद से, आई एम नॉट विलिंग टू सेल, आई एम डिलीटिंग दिस, ऑलराइट। बी बोलता है आई एम नॉट विलिंग टू सेल, नॉट willing to sell. Now A sues B. You all are judges. Tell me, will he succeed? किसी को लग रहा है यस? राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट कि नो, इस केस में कोर्ट हेल्ड करती है कि एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्वायरी, कि ये कोर्ट बोलती है कि ये दिस वाज नॉट एन ऑफर, ए ने इंक्वायर किया था एंड बी ने जो रिप्लाई दिया है इट वाज अ रिप्लाई टू हिज इंक्वायरी, इट वाज नॉट एन ऑफर, इट वाज नॉट एन, B was not giving a offer to A, it was just a mere reply to his inquiry। तो लिखो कि इसमें कोर्ट हेल्ड करती है कि an offer is different from inquiry, an offer is different from an inquiry at the stage of inquiry, at the stage of inquiry the intention is not to enter into the contract, the intention is not to enter into the contract, as such it is only to gather information about the product. In the case of inquiry, at the stage of inquiry, the intention is not to enter into the contract as such, rather it is only to gather information. It is only to gather information. If the information is found to be suitable, if the information is found to be suitable, now the intention is to enter into the contract, and now the intention is to enter into the contract, and with that intention offer is made, and with that intention offer is made, ठीक है। now there is a question, एक question पूछती हूँ, सुनना। in a self-service store offer would come from, in a self-service store offer would come from, option A, the staff of the offer, the staff of the store, sorry, the staff of the store, B, the owner, C, the general public, D, the customer. Question, I'm repeating it again. In a self-service store offer would come from A, the staff of the store, the owner, the general public, the customer. Very good. All of you are getting into law of fact. Good. The offer comes from the customer. Good. With this, we come to end with आपका offer. Good, good. All of you, right, right. Now, next is acceptance. Next is acceptance. Types of acceptance. First, क्या होता है? Express. Express and implied, express and implied, implied simply words में जो होता है, words either oral or written, words express क्या होता है, express होता है words
ओरल और रिटन, लिख लो ऐसे, ऐसे लिख लो, वर्ड्स में हो, हाँ, ओरल और रिटन। ठीक, किसी ने भी मुझसे पहले शायद क्वेश्चन भी पूछा था इम्प्लाइड का, बता दे रही हूँ फिर से। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? विच इज थ्रू जेस्चर, जेस्चर से, इशारों से, जेस्चर और एक्शन और कॉन्डक्ट, या एक्शन है, मेरी राइटिंग तो ज्यादा ही बेकार ही है, ऐसे में बहुत बुरा लिखती हूँ यहाँ पे तो और कुछ ज्यादा ही बुरा हो जा रहा है। कॉन्डक्ट, इट इज कॉन्डक्ट, ऑलराइट, CONDUCT। इम्प्लाइड ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों बता रही हूँ यहाँ फिर से कि इम्प्लाइड होता है जो कि थ्रू कॉन्डक्ट होता है, थ्रू जेस्चर होता है, ठीक है। मान लो कि मैंने, मान लो पहले एक्सेप्टेंस बताती हूँ कि मान लो मैंने ऋषभ से कहा कि ऋषभ विल यू बाय माय पेन फॉर 100 रुपीज, एंड व्हाट ऋषभ डज इज, ऋषभ अपने वॉलेट से मस्त 100 रुपए का नोट मुझे दे देता है। तो क्या ऋषभ ने कुछ कहा? क्या ऋषभ ने कुछ लिखित में मुझे दिया? नो, ही डिड नॉट। व्हाट ही डज इज कि वो अपनी पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकाल के मुझे दे देता है। तो उसने अपना एक्सेप्टेंस कैसे दिया कि वो 100 रुपए का नोट जो उसने मुझे निकाल के दिया, थ्रू हिज कॉन्डक्ट ही हैज एक्सेप्टेड माय ऑफर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। इम्प्लाइड ऑफर फिर से बताती हूँ। इम्प्लाइड ऑफर में मान लीजिए कि जब आप मान लो व्हेन यू गो टू रेलवे व्हेन यू गो टू, मान लो कि आप जब जाते हो किसी कॉबलर के पास, ठीक है, यू गो टू अ कॉबलर एंड यू कीप योर फुट, यू कीप योर शूज ऑन दैट ब्लैक बॉक्स। डू यू से समथिंग कि भैया मेरा शूज पॉलिश कर देना? नो, थ्रू योर एक्शन यू हैव गिवन एन ऑफर, थ्रू योर एक्शन you have given an offer, and this is a implied offer also, ठीक है। क्लियर है? implied offer भी बता दिया फिर से। implied acceptance and express acceptance is clear? implied acceptance and express acceptance and implied acceptance is clear? अरे भैया रुको रुको, बताऊंगी काउंटर ऑफर भी। हाँ बिल्कुल, इट वर्क्स यार, इट डज वर्क, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन, मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन, मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन is not acceptance. Mere mental determination is not acceptance. Mere mental determination is not acceptance. Okay. इसमें क्या होता है? इसमें there was this case, वो जो बम्पर हॉल वाला केस बताया था ना, उस केस लॉ का नाम था हार्वे वर्सेस फेसी, ठीक है, हार्वे वर्सेस फेसी। मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है बताती हूँ कि एक अंकल रहते हैं, ठीक है, एक अंकल रहते हैं, वो अपने अपने नेफ्यू को वो एक लेटर लिखते हैं कि विल यू सेल योर हॉर्स फॉर 100 यूरोज, कि वो लिखते हैं अंकल विल यू sell your horse for 100 euros, horse for 100 euros, 100 euros, and he adds a condition, कि if you don't reply within 1 week, if you do not reply within 1 week, I shall assume that you have agreed to the sale. कि अगर आप within a week, अगर आप एक सप्ताह में अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो I will assume that you have agreed to the sale.
नेफ्यू जो करता है, नेफ्यू ही डिसाइड्स टू सेल द हाउस बट ही डजंट रिप्लाई टू द लेटर। नेफ्यू जो रहता है ही डिसाइड्स टू सेल, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता है अंकल को, ठीक है। नाउ क्या होता है, नेफ्यू कहता है, वो जो ऑक्शनियर रहता है उसको कहता है कि रिजर्व दिस हॉर्स फॉर अंकल, ठीक है। वो अपने ऑक्शनियर को कहता है कि रिजर्व दिस हॉर्स फॉर अंकल, लेकिन जो ऑक्शनियर रहता है ही सेल्स द हॉर्स टू मिस्टर एक्स बाय मिस्टेक। जो ऑक्शनियर रहता है वो बाय मिस्टेक एक्स को बेच देता है वो हॉर्स। नाउ अंकल सूज द नेफ्यू। बताओ, इज इट पॉसिबल? all of you are judges for the moment. Tell me, is it possible? Hmm. All right. All the judges says no. कोर्ट भी यही कहती है। कोर्ट इसमें डिसीजन देती है कि मेयर साइलेंस और मेयर मेंटल डिसीजन इज नो एक्सेप्टेंस, कि सिर्फ चुप रहना या मन ही मन में कुछ डिसाइड कर लेना, मन ही मन में एक्सेप्ट करना इज नो एक्सेप्टेंस। In order to have a valid acceptance, it is important that the acceptance has to be communicated to the other party, either expressly or impliedly। या तो आप लिखित या आप बोल के दो, या आप impliedly ही आप उसको रिप्लाई करिए, ठीक है, कि आप उसको impliedly, लेकिन आपको अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना होगा अदर पार्टी को, ठीक है। ऑल्सो इस केस में कोर्ट ये भी कहती है कि as regard to the condition put by the uncle, the court held that any condition which puts upon the other party a burden of refusal or a duty to reply would be void। मैं नहीं कह सकती किसी दूसरे पार्टी को कि आप बोलिए या आपको रिप्लाई करना ही होगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन होगा तो वो क्या होगा, वो कंडीशन विल बी अ वॉइड कंडीशन। क्लियर है बच्चा पार्टी, क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल राइट। किसी को कोई डाउट रहे तो बोल दो यार, प्रॉब्लम भी हो तो पूछ लो। नाउ अभी मेरे से कौन पूछ रहा था काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर, फाइनली आई एम कमिंग टू काउंटर ऑफर आपके डर से, ठीक है। नो कम्युनिकेशन सो नो एक्सेप्टेंस, यस गुड। नाउ नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। कौन था भाई काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है बताती हूँ। सिंपल शब्दों में बार्गेनिंग को कहते हैं काउंटर ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर क्या होता है? हाँ निक्की, मान लो कि ए बोलता है बी को, ए बोलता है बी को विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख, ठीक है, विल यू बाय माई कार, ये समझ जाना भाई, मैं जो बोल रही हूँ ना वही लिखना है मुझे। विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख, फॉर 1 लाख, 1 लाख। बी बोलता है कि टेक 80,000, टेक 80,000। ये दिस थिंग कि ए ने क्या ऑफर किया, ए ने क्या ऑफर किया, ए ने ऑफर किया कि विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख, और बी ने क्या कहा कि टेक 80,000। हम लोग बोलते हैं कि सरोजनी जब लड़कियां जाती हैं, आधी यहाँ जो बैठी हुई है, भैया बोलते हैं 100 फिर नहीं भैया 80 ले लो, भैया स्टूडेंट है भैया, करते हैं ना। हाँ 50, राइट, दिस इज ठीक है। राइट राइट, दिस इज व्हाट इज काउंटर ऑफर। वी नो इट सिंस आवर बर्थ, हमें पता है क्या होता है, बट नाउ वी आर जस्ट रीडिंग, लाइक हम करते आ रहे हैं, बट अभी बस हम थोड़ा लीगल टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बोलती है 80,000 ले लो, तो क्या होता है, जो इनिशियल ऑफर होता है ना, जो इनिशियल दिस ऑफर, इट स्टैंड्स रिजेक्टेड, ठीक है। नाउ अगर मान लो, नाउ बी बोले कि ओके ठीक है ले लो भैया 1 लाख, ही डज नॉट, मान लो ए डज नॉट एक्सेप्ट, ए सेज नो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही गंदा हो गया। मान लो ए बोलता है नो हम नहीं लेंगे 80,000, ठीक है, नो। नाउ बी सेज टेक 1 लाख, ठीक है, ए बोलता है नहीं नहीं लेंगे भैया, करते हैं, दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ सरोजनी, ठीक है। भैया लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं लेंगे, कमला नगर में भी होता है,
क्या आपने फर्स्ट टाइम में भैया लोगों का अपना स्वाग है, ठीक है। नाउ नाउ बी कहता है कि ठीक है टेक 1 लाख, ठीक है, ए टेक 1 लाख, ठीक है। बी कहता है ए को, यहाँ पे ए ने कहा बी को नो, नाउ बी सेज टेक 1 लाख, नाउ ए सेज नो, नहीं लेंगे, नहीं लूंगा, चलो निकलो आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ बी decides to sue for breach of contract. All of you are judges, tell me the answer. All of you are judges. देखो लॉ नहीं करा है, मैंने जज बना दिया पहले ही। Tell me, will he succeed? Right, all the judges are right here. He won't succeed. क्यों? क्योंकि जो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो इनिशियल ऑफर जो ए ने दिया था, विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज वाला, वो तो कैंसल तभी हो गया था जब आपने 80,000 का दे दिया था, ठीक है। इसी में हाँ, सी जजेस की बेंच है। नाउ इसमें होता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ठीक है, हम धरा, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि will you buy my car for 1 लाख रुपीज, तो you have to say yes I will buy your car for 1 लाख रुपीज. If you say कि will you take 10 lakhs, or if you say 1,10,000 you take, तो no, तब ये acceptance नहीं होगा। Acceptance must be absolute, absolute and unqualified, ठीक है। It must be given as it is to the offer. इसमें लगता है आपका mirror image rule। क्या लगता है? मिरर इमेज रूल बोलते हैं कि जैसा ऑफर है वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। If the party changes the terms of the offer or introduces new condition, it is not acceptance, rather it is a counter offer. Counter offer में क्या हो जाता है? It extinguishes the old offer, ठीक है। क्या होता है कि काउंटर ऑफर में इट एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड ऑफर एंड गिव्स बर्थ टू द न्यू ऑफर। जब उसने 80,000 बोला तो ये एक न्यू ऑफर हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना? और ऑल्सो इसमें ना आपका जो पोजीशन चेंज हो जाता है, जो ओरिजिनल प्रपोजर होता है इसके बाद क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा एक्सेप्टर, ठीक है। और जो प्रॉमिसी होता है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका प्रपोजर। क्लियर? कोई डाउट किसी को कुछ? हाँ, एक बार मैं देख लेती हूँ चैट बॉक्स। भैया पहले एबीवीपी दिल्ली आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप हमें अपना नाम बताएंगे कि आप कौन है, कौन से कॉलेज से आप एबीवीपी दिल्ली के, इसमें आप नाम से आप पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। आप पहले एक बार ही बता दो कि कौन हो भैया तुम, ठीक है। क्या बोले? काउंटर ऑफर, ठीक है भैया। एबीवीपी दिल्ली आप मेरा नंबर लेके आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको बताऊंगी पर्सनली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, everyone is fan of ABVP. Acceptance of general offer. क्रॉस ऑफर एक और बार, इट इज नॉट क्लियर। देखो क्रॉस ऑफर क्या होता है, यानी कि सिंपली जो होता है आपका जो बार्गेनिंग होता है, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ निक्की विल यू बाय माय पेन फॉर 10 रुपीज, आप बोलो मैम 10 रुपए नहीं है 8 रुपए ले लो, ठीक है। तो जब आप मुझे बोल रहे हो कि मैम 8 रुपए ले लो, तो आपने एक मुझे क्रॉस ऑफर किया, आपने मुझे एक ऑफर किया। एंड व्हेन यू से 8 रुपए, तो नाउ इट इज अप टू मी इफ आई वांट टू एक्सेप्ट इट और इफ आई वांट टू रिजेक्ट इट। इफ आई रिजेक्ट, आई से कि नहीं नहीं मुझे नहीं बेचना, ठीक है। तो नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब आप मुझे 10 रुपए भी दोगे और मैं बोल दूं कि मैं नहीं लूंगी, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओ सॉरी 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 सॉरी, काउंटर ऑफर। अरे अभी तो काउंटर ऑफर में बता रही थी, क्रॉस ऑफर कहाँ से आ गया यार ऐसे? ठीक है, क्रॉस ऑफर मैं बता दूंगी बाद में, ये काउंटर ऑफर था। आई एम सो सॉरी, आई थॉट शी इज आस्किंग काउंटर ऑफर।
बताऊंगी, काउंटर ऑफर लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं, 10 मिनट रुक जाना, एंड में जिसको रुकना है, जो डाउट होगा वो बताऊंगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें आओ, एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर कहते हैं कि किसी भी जनरल ऑफर, ठीक है, किसी भी जनरल ऑफर के लिए टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, कि किसी भी जनरल ऑफर को एक्सेप्टेंस करे, एक्सेप्ट करने के लिए पहला होता है क्या, पहला होता है कि, एक मिनट रुकिएगा, मैं आई एम राइटिंग इट डाउन। पहला होता है कि फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ द ऑफर, नॉलेज ऑफ द ऑफर, ठीक है, पहला होता है। सेकंड होता है कि इन जनरल ऑफर परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑफर इन इटसेल्फ इज द एक्सेप्टेंस, कि परफॉर्मेंस इंप्लाइड होता है यहाँ पे, जो एक्सेप्टेंस होता है परफॉर्मेंस ऑफ द, परफॉर्मेंस से बेटा ये, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफर, ऑफ द ऑफर इज इटसेल्फ इज द एक्सेप्टेंस, ठीक है। जैसे कि इसका इसका जो एग्जांपल है ये बता रही हूँ, इस ये परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफर में तो आपका कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी आ जाएगा, राइट, कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी, याद है ना इन्फ्लुएंजा वाला जो अभी बताया था, यही आ जाएगा इसमें, दिस पार्ट, ये वाले में, ठीक है, दिस, इसमें कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी आएगा। इसमें आपका केस लॉ जो है वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि जो डिफेंडेंट रहता है ना, उसके, चलो बता दो, एक लैंडलॉर्ड रहता है, स्टोरी सुनो, एक लैंडलॉर्ड रहता है, उसका जो नेफ्यू रहता है वो खो जाता है, वो खो जाता है, तो वो अपने सर्वेंट को, उनके यहाँ के जो मुंशी रहते हैं उनको बोलते हैं कि भैया आप जाओ, मेरे जो मेरा जो नेफ्यू है उसको ढूंढ के लाओ। तो जो मुंशी रहता है वो अपने वो अपने लैंडलॉर्ड के, वो अपने मालिक के कहने पे ही गोज एंड ही सर्चेस, लाइक वो सर्च, जो क्या कहते हैं, सर्च अभियान शुरू करता है, ठीक है। वो सर्च अभियान जब शुरू करता है तो वो उसके नेफ्यू को वो ढूंढ के ले आता है, फ्रॉम अ डिस्टेंट सिटी, वो उसको उसका नेफ्यू मिल जाता है। तभी जब वो ढूंढने जाता है ना, तभी जो लैंडलॉर्ड रहता है वो क्या करता है, वो लेकर के आते हैं क्या, वो तब तक एक इश्तेहार दे देते, ओ भाई लोग ये सब क्वेश्चन ना पूछो, मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा बर्थडे कब आ रहा है, गिफ्ट दोगे तब बताऊंगी कॉलेज खोलने के बाद, ठीक है, कि जब वो भेजते हैं, लाइक तभी तक बीच में जब वो जाता है ढूंढने के लिए, तभी क्या होता है कि वो जो मालिक रहता है वो एक इश्तेहार दे देता है, वो एक इश्तेहार दे देता है पेपर में, दैट whosoever will find out my nephew, I will give that person 500 rupees, ठीक है। लेकिन वो जो उतना मुंशी रहता है, he was not aware of this contract, ठीक है, he was not aware of this advertisement. Now he searches the kid and he brings him back home. After few days, after 15 to 1 month, he comes to know that कि उसके मालिक ने ऐसा ऐसा कोई इश्तेहार दिया था, ठीक है। एंड तभी उन लोगों के बीच में कुछ खटपट हो जाती है एंड वो उसको छोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसा सिनेरियो था। तो होता क्या है, आफ्टर 1 month टाइम ही गोज बैक टू हिज मालिक एंड ही सेज कि भाई साहब आपने ऐसा ऐसा कहा था, नाउ गिव मी द अमाउंट। दैट जो आपका जो इंसान रहता है, जो डिफेंडेंट रहता है, वो बोलता है कि अब किस चीज का, अब तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। नाउ व्हाट दैट पर्सन डज इज, नाउ व्हाट दैट मुंशी डज इज, ही सूज he sues the डिफेंडेंट, ही सूज इज जो बॉस रहता है उसको सू कर देता है, ही क्लेम करता है वो अमाउंट। कोर्ट इस केस में कहती है, अच्छा तुम लोग सब कोई जज हो, बताओ मुझे आंसर, विल ही सक्सीड? All right, yes, he won't succeed. Why? Because there can be no acceptance without offer. ठीक है, विदाउट ऑफर से मतलब क्या हुआ मेरा कि नॉलेज ऑफ द ऑफर। जब भैया आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑफर है तो आप एक्सेप्टेंस किस चीज का दे रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर?
चलो अब 8 ऐसे भी बच गया है तो मैं क्लास यहाँ पे रोक रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डूइंग व्हाट, आई विल बी डूइंग एक्सेप्टेंस, आई विल बी डूइंग, एक मिनट रुकेगा, इसके डाउट्स है जल्दी से वहां पे डालो। किसी के डाउट नहीं होंगे अब। आप इतना अच्छे से पढ़ा दियो और स्टार्टिंग में ही डाउट ले लिए, क्लास के बीच में तो डाउट कहाँ से होंगे किसी के पास। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी के फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन, आई एम रेडी टू टॉक आल्सो, आई एम वेरी टॉकेटिव। ऐसे ठीक है, सेल्फ सर्विस इज आपका वर्ड, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर, ऑलराइट, मैं लिख लेती हूँ क्या क्या डाउट है, इनविटेशन टू ऑफर और काउंटर ऑफर, ठीक है भैया। यार ये एबीवीपी दिल्ली तुम्हारा आज क्वेश्चन ले रही हूँ, कल नहीं लूंगी, नहीं बताओगे कौन हो तुम, और क्रॉस ऑफर, ठीक है, ठीक है। Last case I thought the name was Lalman Shukla versus Gauri. Right, right. That is what is cross offer. ठीक है, अब रुक जाओ। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर कोई नहीं पूछेगा, इनविटेशन टू ऑफर कोई नहीं पूछेगा, मैं ठीक बता रही हूँ फिर से। और कोई डाउट है किसी का बताओ। आईपीसी मैं करवाऊंगी कि नहीं करवाऊंगी, दैट इज नॉट श्योर, बट या अभी राइट नाउ आई एम टीचिंग फॉर दैट। ठीक है, रुको रुको, हम किताब लिख देंगे वापस। Wait. या तुम लोग प्लीज 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 डोंट आर, रुक जाओ। क्या, ठीक है अंकित, तुम्हारा क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं इन लोगों को इतना बताती हूँ। क्या किसी का क्वेश्चन वाज व्हाट इज काउंटर ऑफर, राइट। देखो, काउंटर ऑफर इज सिंपल, जब आप किसी से बार्गेन करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने मयूरेश से कहा कि मयूरेश विल यू बाय दिस पेंसिल फॉर 10 रुपीज, ठीक, दिस इज एन ऑफर, आई एम गिविंग एन ऑफर टू मयूरेश दैट मयूरेश इफ यू विल बाय दिस पेंसिल फॉर 10 रुपीज और नॉट। नाउ मयूरेश टेल्स मी कि नो श्वेता दी, आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट, आई विल गिव यू 8 रुपीज, 8 रुपए दूंगा। So what Mayuresh has done? Mayuresh has given me another offer, right? He has given me a different offer of 8 rupees. So this is what is counter offer. ठीक है? Now, अगर मैं कह दूं कि no, I'm not willing to sell my pencil for 8 rupees. Now Mayuresh comes back to me and he says कि okay Shweta दी, take 10 rupees. ठीक है? Now I says कि नहीं, तू बहुत नाटक कर रहा था स्टार्टिंग में, I'm not giving you for 10 also. ठीक है? Now if Mayuresh brings a suit against me, will he succeed? So answer is no, he won't succeed. Why? Because the moment he tells me कि 8 रुपए में ले लो, तो जो इनिशियल ऑफर मैंने दिया था 10 रुपए वाला, वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज काउंटर ऑफर। नाउ कमिंग टू क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है कि मान लो कि मयूरेश ने मेरा ये पेन देखा हुआ है, बहुत सुंदर है, गोल्डन एंड सिल्वर कलर का। आई राइट अ लेटर टू मयूरेश कि मयूरेश विल यू बाय माय पेन फॉर 10 रुपीज, ठीक। At the same time, Mayuresh also writes a letter to me कि श्वेता दी, will you sell your pen for 10 rupees? तो इसमें क्या है, इसमें दो ऑफर ही है। There are two identical offers कि मयूरेश भी मुझे कह रहे हैं that will I, Mayuresh is also telling me that will I sell my watch for 10 rupees, and I am also telling Mayuresh that if Mayuresh will buy my pen for 10 rupees, ठीक है। These are two identical offers. However, there is no acceptance. तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। क्रॉस ऑफर जिसको डाउट है, इज इट क्लियर? काउंटर एंड क्रॉस बता दो, डिफरेंस खुद समझ लो क्या होता है। I don't think I need to tell you people कि what is the difference. You guys are intelligent enough to understand. Right. Yes, identical offers होते हैं। Now somebody asked me that self service वाला। देखो, जो सेल्फ सर्विस स्टोर में होते हैं ना, सेल्फ सर्विस स्टोर इज द गुड एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब आप किसी सेल्फ सर्विस स्टोर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू 24/7,
वहां पे सबकी शेल्फ में लगा रहते हैं। तो जो शेल्फ में जो चीजें रखी हुई है, मान लो देयर इज अ पेन इज केप्ट देयर, ठीक है। तो दिस पेन बीइंग केप्ट ऑन द शेल्फ ऑफ अ सेल्फ सर्विस स्टोर is a invitation to offer, is an invitation to offer. Now it is up to you. You will go, you will pick this up, you will take this pen to the counter, and in counter you will be giving the offer. ठीक है? The counter person has got all rights that he can either accept it or he can either reject it. ठीक है? Invitation to offer वो होता है कि जिसमें one party puts certain terms and conditions on which he is willing to negotiate, and he asks for क्या? He invites offer. ठीक है? Clear है? Is it clear? किसी को कोई और डाउट? हाँ हाँ यार, बन सकता है, कोई डाउट नहीं ना? ऑल राइट, ठीक है। अंकित ने मुझे कुछ मैसेज किया था, लेट मी रीड इट आउट नाउ। यार अंकित, तुम्हारा मैसेज बेटा बहुत ऊपर हो गया है। अंकित बाटी थी यार, फर्स्ट तुम्हारा मैसेज कौन सा है? हाँ, if he has a knowledge of the contract, तो he can claim that amount. लालमन शुक्ला वाला अंकित, शायद मुझे जितना लग रहा है आपका क्वेश्चन है, yes, if he has the knowledge कि ऐसा कुछ है तो he can claim it. ठीक है? ठीक है भाई, मत तारीफ करो मेरी इतनी, मैं ऑलरेडी बहुत मोटी हूँ, मैं और मोटी हो जाऊंगी। All right, ठीक है guys, I hope you guys like the class. If there is any feedback, if there is anything that you want to change at my end, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, दैट इज माई हैबिट, दैट आई ट्राई कि थोड़ा करे, बटन कर रहे हैं ना सब, आई नो दैट इज ऑलराइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलो, मैं कहाँ से हूँ, चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं। आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड की मैं हूँ। तो मैं झारखंड की हूँ, बट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन ऑल्सो फ्रॉम Delhi University, and I have also done my law from Delhi University, and right now I'm doing my LLM from NLU Ranchi. ये मेरे बारे में इतनी जानकारी, बेस्ट है। ठीक है, किसी को कोई लॉ के एग्जाम से कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछो, और I'll end it. नाउ मैम कितने दिन और लगेंगी क्लास कॉन्ट्रैक्ट में? 4-5 days, 3-4 days of 3-4 classes I need, I guess I'll be needing it. देखो पीडीएफ बेटा मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं पीडीएफ नहीं पढ़ाती, मैं क्लास में इसीलिए नोट्स दे देती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव नोट्स, ठीक है। रेस्ट अगर पीडीएफ चाहिए तो भैया मयूरेश एंड ऋषभ, दे आर वेरी गुड पीपल, दे विल गिव यू सम कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स तो देंगे ही वो लोग, बट व्हाट आई टीच इज लाइक मैं क्लास में नोट्स लिख, आई ट्राई, आई प्रेफर गिविंग नोट्स इन क्लास इटसेल्फ। तो और क्वेश्चन? ठीक है, चलो मैम, रट्टा मारने की कोई टिप्स? भैया वो तो इनबिल्ट आता है, वो कोई टिप्स नहीं है, एक ही चीज को 10 बार पढ़ो रट्टा हो जाएगा। रेस्ट आई डोंट बिलीव इन रट्टाफिकेशन। ऑलराइट, no, that is what I told in yesterday's class only, that the section of Contract Act is not important. What you need to remember is what is like, मान लो, what is price paid for a promise? Divesh, answer me. What is price paid for a promise? क्या क्या है वो? मैंने कल बताया था, price paid for a promise is consideration. So what they will do is they will give you a definition, and they will give you 3-4 options, and now you need to pick it up which one is the correct answer. ठीक है? हाँ हाँ, आ जाएंगे, पढ़ना शुरू करो, expect the worst of question and prepare for the like best. ठीक है, चलो bye bye now, take care guys. If you guys have any question, feel free to irritate my oration Rishabh. All right, take care.